Okay, good morning to all. So today today we discuss the properties of a determinant. So beta today we discuss the some properties of a determinant. So beta our topic for today is properties properties of properties of determinant. Properties of determinants. So what are the properties of determinant? You already covered this topic in the lower classes, but we again discuss this topic in a detail. ठीक है, तो बेटा आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि what are the different properties of a अगर बेटा जो हमारे डिटर्मिनेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे. सो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट इज दैट. सो बेटा first property of the determinant, write the property. First property of determinant is, so beta जो मेरी first property है that is if the element, first property, if the elements of, each element if each element of a row or column of determinant is zero is zero, then the value of value of determinant is also zero. Value of determinant is zero. So beta this is the first property of the determinant. So beta first property is if each element of a row or a column, बेटा हमारे पास चाहे एक रो या एक कॉलम का each element क्या हो zero, then the answer for our determinant is zero. For example, student, let us suppose I want to find the determinant of this matrix. ठीक है बेटा जी, I want to find the determinant of this matrix. Now बेटा check करो, for this matrix each element of a second row is zero, therefore the answer for this determinant is zero. So बेटा if each element of a row or a column is zero, then the value of determinant is also equals to zero. So beta same if I can choose the column. ठीक है, और बेटा मैं कोई भी कॉलम भी कोई भी चूज सकती हूँ. लेट अस सपोज बेटा माय फर्स्ट कॉलम इज 0 0, सेकंड कॉलम इज a1 a2 a3 b1 b2 b3. Then beta again the answer for this determinant is 0 because each element of each element of first column is 0. So beta each element of first column is 0. So beta जी so हमारा इसका determinant क्या आ गया है, determinant is 0. ठीक है. So now beta if I write here one more example, I want to find the determinant of the matrix 0 0 0 minus 5 2 minus 5 2 6 1 2 5. So beta what is the answer for this determinant? Very quickly write in the chat box. Very good students. Write in a chat box beta. Yes, so determinant of this matrix is 0 because beta ji our first row equals to 0. Each element of first row is a 0. So beta this is a first property of a determinant.
Now beta we discuss our second property of determinant. बेटा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई थी? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज जीरो देन द डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो. Now beta our second property to find the determinant is beta the determinant is not changed by the determinant of the value of determinant is the value of determinant. बेटा मैं डिटर्मिनेंट के लिए DET यूज कर ली हूँ. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉट is not changed by by changing by changing the rows by changing the rows into columns into a column. ठीक है, or columns into a rows and columns 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 into rows. So beta that means the value of determinant is not changed if we can interchange the rows and columns of a determinant. So beta interchanging of rows and columns of determinant means beta the determinant of A and determinant of A transpose are always equal. So beta the determinant of A and determinant of A transpose are always equal. Let us suppose that for example here I write the matrix A equals to बेटा मैं सिंपल सा मैट्रिक्स लिख रही हूँ 1 2 3 0 5 1 1 2 1. So बेटा here if I find a determinant, तो बेटा मेरा a determinant किसके इक्वल आ जाएगा? 5 minus 2 0 minus 1 plus 3 0 minus 5. So beta this is equals to 3 plus 2 minus 15. Check करो बेटा, this is equals to minus 10. Now बेटा if I find A transpose, अगर बेटा जी मैं यहाँ पे A transpose find करूँगी that is equals to 1 2 3 0 5 1 1 2 1. Now beta find the determinant of this new matrix. बेटा be quick, जल्दी से बेटा जी जो हमने A transpose लिखा है उसका determinant find करो. Be quick बेटा. Manpreet Singh, बेटा write your roll number with your name. Prince, Rajkumar, Varun. बेटा who is this Galaxy M21? Write your name into a chat box. So बेटा आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया. डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -10. So बेटा as we discuss that the determinant of A and A transpose are always equal. ठीक है बेटा, जो मेरा A and A transpose है उन दोनों का डिटर्मिनेंट आपस में क्या है? इक्वल. दैट मीन्स बेटा जी हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है. सो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है थर्ड प्रॉपर्टी, बेटा हु इज दिस गैलेक्सी M21? राइट योर नेम. I repeat this number of times. Beta kindly enter in a class with your name and a roll number. Or I can mark the attendance. I mark the attendance of Galaxy M21.
So beta next property, our next property, third property is, so beta now we discuss the third property. If the two, if two two different rows, if the two different rows rows or columns or columns of a determinant are are interchanged interchange then then the sign of then the sign of determinant then the sign of determinant is changed is changed, but the value, numeric value is same, but the numeric value is same. So बेटा जी, that means बेटा इसका मीनिंग क्या है? If we interchange any two rows or a columns of a determinant, ठीक है बेटा, पर्टिकुलरली हम लोग एक डिटर्मिनेंट की या तो बेटा जी दो रोज को किसी को, जहाँ बेटा किसी दो कॉलम्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है जो बेटा जी, जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो क्या रहेगी, सेम। एंड बेटा जी वैल्यू सेम है तो सिर्फ क्या होगा बेटा जी, वैल्यू सेम, क्या चेंज होगा, साइन, ठीक है। तो बेटा जैसे लेट अस सपोज बेटा हियर आई कैन राइट द मैट्रिक्स ए, ठीक है। एक बेटा मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स बेटा मैं लिख रही हूँ A1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेट अस सपोज बेटा, लेट अस सपोज, ठीक है। इसका बेटा डिटर्मिनेंट मेरे पास आता है x, ठीक है। सॉल्व करोगे बेटा, डिटर्मिनेंट क्या है, x। नाउ बेटा इफ आई चेंज the any two rows or any two column, let us suppose beta here I change first and a third row, ठीक है। मैंने बेटा किसको चेंज कर दिया, आई चेंज फर्स्ट एंड थर्ड रो, फर्स्ट रो को थर्ड रो की जगह पे भेज दिया और थर्ड रो को फर्स्ट रो की जगह पे। तो बेटा यहाँ पे मेरा साइन क्या आ जाएगा, देन माय साइन इज -x, ठीक है। सो बेटा इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और अ कॉलम्स, ठीक है बेटा, अगर हम कोई दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो बेटा साइन मेरा क्या हो जाएगा, देन साइन इज नेगेटिव, ठीक है। बट द न्यूमेरिक वैल्यू इज सेम, ठीक है बेटा। बट हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या रहेगी, दैट इज द सेम। नाउ बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर बेटा हम 2 बार इंटरचेंज करते हैं तो देन वी टेक -1^2। अगर बेटा हम वही चेंज 3 बार कर देते हैं देन हम क्या लिख देंगे, 1 -1^3, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू if two rows or rows or columns of determinant are, if two rows or columns of determinant are identical then the value of then the value of determinant then the value of determinant is 0. So beta here
व्हाट डज दिस मीन्स। ठीक है बेटा, हमने क्या लिखा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, अगर बेटा मेरे मैट्रिक्स के दो रोज या कॉलम्स क्या हैं आइडेंटिकल, तो बेटा मेरा डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। नाउ बेटा मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल हियर, द मीनिंग ऑफ द आइडेंटिकल मीन्स, बेटा जी क्या मीनिंग है आइडेंटिकल का, कि मेरे दो रोज या कॉलम्स क्या होंगे, सेम। ठीक है, टू रोज और कॉलम्स, बेटा जहाँ तो मेरे दो रोज, जहाँ बेटा कॉलम्स वो आपस में क्या होंगे, सेम। तो बेटा जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो बेटा फिर मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा इफ आई कैन राइट द मैट्रिक्स, बेटा मैं यहाँ पे एक अब एग्जाम्पल लिखूंगी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने फिर उसको फाइंड करना। जस्ट बेटा वेट फॉर अ मिनट टू सम टेक्निकल इशू। ओके, सो बेटा इफ आई कैन टेक एग्जाम्पल, बेटा हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा आई राइट द मैट्रिक्स ए, बेटा मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके चेक कर लें। ठीक है, आई बेटा टेक फॉर द कॉलम, लेट अस सपोज बेटा आई हैव द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, बेटा मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, उसका फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 2 3, और बेटा सेकंड कॉलम है -1 5 9, एंड थर्ड कॉलम इज अगेन इक्वल्स टू 1 2 3। देन बेटा फाइंड ए डिटर्मिनेंट। जल्दी से बेटा बी क्विक, जल्दी से फाइंड करो बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। वैसे ही नहीं लिख देना कि जीरो, बेटा सॉल्व करना है। वेरी गुड हरजोत, गुरजोत, गुरजोत, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड आदर्श। ठीक है, सो बेटा इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, जीरो। सो बेटा इफ द टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितनी होगी, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। नाउ बेटा वी डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट, सो बेटा इफ राइट डाउन अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ every element of a row, if every element of a row or column is multiplied by some constant, by some constant k, then the value of determinant, then the value of determinant is multiplied is multiplied multiplied by k। ठीक है, अगर बेटा जी हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है बेटा, सॉरी कोई डिटर्मिनेंट है बेटा, उसके एवरी एलिमेंट है बेटा, हम रो या कॉलम के एवरी एलिमेंट को बेटा किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा हमारा डिटर्मिनेंट भी उस कांस्टेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज बेटा इफ आई हियर राइट द मैट्रिक्स, ठीक है बेटा मेरा मैट्रिक्स क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बेटा लेट अस सपोज आई मल्टीप्लाइड, बेटा इस डिटर्मिनेंट का आंसर मेरे पास क्या है, डेल्टा। ठीक है बेटा आई मल्टीप्लाई द सेकेंड कॉलम विद द के। ठीक है बेटा मैं सेकेंड कॉलम को के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो बेटा इसको मैं कैसे लिखूंगी, A1 B1 C1 के A2 के A2
KB2, KC2, A3, B3, C3। देन बेटा इसका आंसर क्या होगा, K टाइम्स डेल्टा। ठीक है, सो बेटा अगर मैं किसी रो या कॉलम को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, देन बेटा जी आई ऑल्सो मल्टीप्लाई दैट। बेटा उस फिर डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या कर देंगे, उस डिटर्मिनेंट को भी बेटा जी मल्टीप्लाई कर देंगे विद दैट एलिमेंट। ठीक है बेटा, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर एनी रो एंड अ कॉलम। ठीक है बेटा, ये पर्टिकुलर नहीं है कि इसको सिर्फ आप इसी पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, दिस रूल इज अप्लाइड फॉर एनी रो और अ कॉलम। ठीक है, नाउ बेटा फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज बेटा मैंने फर्स्ट को के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी सेकंड को, थर्ड को भी बेटा जी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अगर मैं फर्स्ट को भी करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यूब। ठीक है, दैट मीन्स बेटा अगर मैं किसी कांस्टेंट को पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा वो कांस्टेंट कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, जितना उस मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर। ठीक है, लेट अस सपोज बेटा मेरा ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है एन। ठीक है, तो बेटा उसको मैं के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वो किसके इक्वल आएगा, के रेज टू पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बेटा अगर एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो वन टाइम आएगा, अगर टू रोज को मल्टीप्लाई या टू कॉलम्स को करोगे तो दो बार के आ गया। अगर बेटा हम होल डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतनी बार ही के रेज टू पावर एन होगा। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट इज वेरी इजी प्रॉपर्टी। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, सो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरी, इफ टू रोज और कॉलम्स, बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी इसको प्रॉपर्टी लिख लो ना बेटा, प्रॉपर्टी का पार्ट लिख लेना। इफ टू रोज रोज और columns of determinant are proportional are proportional then the value of determinant is zero, then the value of determinant is zero. now beta proportional means if one रो के बेटा जो रो या कॉलम है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो बेटा किसी सेकंड रो या कॉलम के एलिमेंट्स के क्या होंगे, मल्टीपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा जैसे लेट अस सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है डेल्टा, बेटा इसको मैं डेल्टा लिख रही हूँ। ठीक है, तो बेटा A1 A2 A3, यहाँ पे मेरे पास है एलिमेंट B1 B2 B3, यहाँ पे बेटा भी है मेरे पास के A1, के कांस्टेंट हो गया, के A2 के A3। अब बेटा देखिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड रो। बेटा जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं वो थर्ड रो के, सॉरी जो थर्ड रो के एलिमेंट हैं दैट आर द मल्टीपल ऑफ अ के ऑफ अ फर्स्ट रो। तो बेटा इसका हम डायरेक्टली आंसर क्या लिख देंगे, जी। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर मेरा क्या आएगा, द आंसर ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो हमारी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ईच एलिमेंट, नाउ बेटा अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ईच element in any row or column consist of two terms, then the determinant can be
expressed as can be expressed as the sum of the two sum of the two determinants of same order. सो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारा कोई बेटा डिटर्मिनेंट है, उसका बेटा जो कोई भी रो या कॉलम है उसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, ठीक है। तो उसको बेटा हम ब्रेक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। बेटा लेट अस सपोज A1, बेटा हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3, ठीक है। और बेटा यहाँ पे मेरा एलिमेंट है B1, B2, B3, C1, C2, C3. Now beta, for example, in this matrix your first row is consist of बेटा कैसी है आपकी 2 टर्म्स, ठीक है, A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2। तो बेटा इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 प्लस अल्फा 1, B1, C1, अल्फा 2, B2, C2, अल्फा 3, B3, C3, ठीक है। तो बेटा अगर मेरी कोई भी रो ऐसे बेटा हर एक रो के कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है और किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग भी वी कैन डन दैट, ठीक है। कि अगर बेटा हमारी कोई रो या कॉलम है जो बेटा क्या है, कैसे कंसिस्ट हुआ है, कंसिस्ट ऑफ द 2 टर्म्स, तो बेटा उसको हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू द 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट इज, ठीक है, जो बेटा मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ determinant, the value of the determinant remains unchanged, remains unchanged if to each element, if to each element of a row, each element of a row or column, row or column be added or subtracted, added or subtracted equi multiple, equally multiple, equally multiplies of the corresponding elements of corresponding elements of one or more rows, one or more rows or columns, one or more rows or a columns, ठीक है। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि इफ हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसकी कोई रो को बेटा जी हम क्या करते हैं, किसी और रो की को मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में जैसे ऐड कर देते हैं, तो बेटा मेरा डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, सेम, ठीक है। लेट अस सपोज बेटा आपके पास 2 रोज है, बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेट अस सपोज बेटा मेरे पास डिटर्मिनेंट है एक A1, A2, A3, B1, B2, B3, ठीक है, C1, C2, C3। इफ बेटा जी आई मल्टीप्लाई, लेट अस सपोज बेटा मैं सेकंड रो को k के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट पे ऐड कर देती हूँ, तो बेटा ये क्या बनेगा, A1 प्लस के B1 और A2 प्लस के B2, A3 प्लस
KB3, तो B1, B2, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो बेटा इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का आंसर क्या होगा? सेम। दैट मीन्स बेटा अगर मैं रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगी किसी के साथ, फिर बेटा किसी और रो या कॉलम में ऐड करूंगी, देन माय डिटर्मिनेंट इज सेम। तो बेटा वो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी तो नहीं है कोई, बेटा आप लोगों ने याद रखना है डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, जो बेटा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, सो बेटा डायगोनल एलिमेंट्स, let us suppose beta here I can write A matrix equals to 1 0 0 0 5 0 0 0 9। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 1 into 5 into 9, that is equals to 45, product of diagonal elements। so beta next we discuss one or two notations। बेटा अगर बेटा रोज हैं तो उसको हम फर्स्ट रो को क्या लिखेंगे? R1, सेकेंड रो को क्या लिखेंगे बेटा जी? R2, थर्ड रो को क्या लिखेंगे? R3। सिमिलरली फॉर द कॉलम्स C1, C2 एंड C3। ठीक है बेटा, हमारे पास ओनली 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेटा कितनी होती है हमारे पास? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ओनली 3। ठीक है, फर्स्ट क्या है बेटा जी? हम लोग एनी 2 रोज और कॉलम्स को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। ठीक है बेटा, वी कैन चेंज बेटा, यू कैन चेंज you can change any 2 rows or columns of the matrix। ठीक है बेटा, आप कोई की भी मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी बेटा जी मैट्रिक्स हो उसके जो बेटा जी हमारे पास क्या है? फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी 2 रोज या कॉलम्स को क्या कर सकते हो? इंटरचेंज। ठीक है बेटा, एनी 2 रोज और कॉलम्स को आप लोग क्या कर सकते हो? इंटरचेंज। सेकंड बेटा क्या है कि हम किसी रोज या कॉलम के बेटा जी एलिमेंट को बेटा जी, ठीक है, किसी नॉन जीरो वैल्यू के साथ क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट हम लोग हमारे जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसमें क्या है बेटा? जो हमारी फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज द इंटरचेंज। वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स। सेकंड बेटा क्या है कि हम लोग बेटा क्या परफॉर्म कर सकते हैं? बेटा हम जितने भी मेरे क्या है बेटा, मैं किसी रोज को कॉलम को बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? नॉन जीरो नंबर के साथ। ठीक है, और बेटा थर्ड ऑपरेशन क्या है? मैं आफ्टर दिस नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बाद बेटा जी मैं किसी 2 रोज या कॉलम्स को क्या कर सकती हूँ? ऐड। ठीक है, फर्स्ट बेटा क्या है कि हम लोग कोई 2 रोज या कॉलम्स को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। बेटा सेकंड क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट, सो बेटा जी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मेरी कि जो मेरे नॉन जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंटरचेंज। सेकंड क्या है बेटा? मैं किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ बेटा जी? नॉन जीरो नंबर के साथ। बेटा उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड। सो बेटा these are the some basic properties of a determinant। now beta we discuss the first question। ठीक है, previous slide में बेटा कुछ नोट करने वाला नहीं था, so write down बेटा without expanding prove that without expanding prove that
prove that determinant 8, 12, 16, 2, 3, 4, 7, 5, 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। नाउ बेटा चेक करो बेटा जी इफ आई कैन रीराइट दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बेटा मैं पहले इसको क्या सपोज करूंगी, लेट डेल्टा इज माय डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल्स टू, बेटा किसके इक्वल है, 8, 12, 16, 2, 4, 2, 4, 2, 3, 4, 7, 5